Okay, so quick recap of the last class. What we studied was how to find units place of a number whose power is given to us. So what we did was we divided the powers last 2 digits by 4 and found out the remainder, right? So the units place was the the uh, the answer to this question would be units place to the power of remainder. So units place to the power of remainder, whatever answer you get, that unit place is going to be the answer for the entire bigger number. Now, what if the remainder is 0? Our answer would have been units place की power 4. उसका जो भी units place आएगा वही पूरे number का units place होगा. This is also an indirect question of asking, what is the remainder when a number is divided by 10? So when you divide any number by 10, obviously the units place becomes the remainder. So we studied all these things in the previous class. And I also taught you that if you have to find out the remainder of, whenever you have to find a remainder where you are canceling certain common factors in numerator and denominator, whatever remainder you get after reducing that fraction or, reducing those values, towards end, you will have to multiply back the value that you have cancelled, right? The one we took this example. So whatever you cancel, you have to multiply back in the remainder to get the original remainder to get the original answer. Then we also studied that if you have to find out the remainders of certain products, which is being divided by a particular number like this, in this case, we can also, divide these numbers independently, find out the remainders, and then multiply those remainders among themselves. Now, if the remainder is greater than the divisor, then obviously you further divide it by the divisor because remainder cannot be larger than the divisor. Now, this thing can also be is also valid when you find sums. That means if you are given 2, 3, 4, 5, whatever the number of numbers are given, you have to find out the sum of those numbers and then you have to find divided by a particular number to find the remainder. This could have been simplified in the sense that you divide individual values by the divisor and get independent remainders, and then you add those remainders. If the remainder is less than the divisor, that itself becomes the answer. If not, you further divide the added remainders by the divisor, and now whatever is the remainder, final remainder, is the remainder of the original question that is given to us. It's not just addition, it can also be subtraction, it can be multiplication, as we have seen this, right? We have took this example, rather than adding these values, we first find out the remainders and then add the remainders or subtract the remainders to get an answer. Then what we also studied was, how do you find out remainders of numbers with certain powers? One of the method was pattern method, whereby you physically keep on dividing, the given number, starting with the, power of 1, dividing by the divisor, and then increasing the powers of the given value, and then figuring out the remainders. Now, chances are there will be in fact, you'll end up forming some sort of pattern, as in after certain power, the remainder keeps getting repeated again and again. Say, for example, in this particular case, we see that after 2 ki power 6, 2 ki power 7 is 2, which is same as the first value. So that means 6th after 2 ki power 6, the remainder is, repeating. So there's a pattern that 2 ki power 6 remainder is, when divided by 9, remainder is 1. So 2 ki power 12, that is 6 into 2 divided by 9, will be again remainder 1. Similarly, 2 ki power 18 divided by 9 once again will be 1. So that is what you call as a pattern method. So using this pattern, you can also get the remainder. So हमने एक pattern method देखा था. Then we have also seen, we've also seen remainder theorem, where I told you that remainder theorem is that if there is a function f of x, which is divided by x minus a, the remainder is given as f of a, right? Now, and I also taught you here that if the remainder is 0, then x minus a becomes the factor of f of x. It is also known as factor theorem. So, if certain questions are given to us in terms of, finding out remainder, you have to convert the numerator in the form of f of x, which is divided by whatever the divisor is given as x minus a.
Normally, if you're able to write in the form of x plus 1, x minus 1, this method is useful. Other than that, this method is not very useful. I mean, it gets complicated, but this is one of those methods that can be used for finding out reminders. We also did this. Of course, we took these examples of solving, factor method. Then we also studied an important theorem, which is Fermat's little theorem, which says that a to the power p minus 1 is divisible by p if p is a prime number where a and p needs to be co-prime. As in this, when do you feel that this method is applied? Whenever you see that there is a number which is having some power, which is being divided by a prime number, right? If it's being divided by a prime number, then you tend to apply this method, and it is very useful method, right? So we took the, few examples that if the prime number is, let's say 13 in this case, and the power is 12, it's not necessary that the power is 12. It can be, 25, 35, but you have to write in the format of 12. Yes, Simon, you raised your hand. What is the question? Yes, sir. Sir, कल आपने सर इसमें कहा था कि दोनों co-primes होने चाहिए. हाँ, बिल्कुल होने चाहिए. सर मतलब नीचे चाहे कोई भी नंबर हो चलेगा? नहीं, नीचे प्राइम होना चाहिए. ओके सर. मतलब मान लो नीचे 13 है, राइट, और ऊपर मेरे पास 169 की पावर समथिंग है. यहाँ पे जो 23 नजर आ रहा है, अगर यहाँ 169 की पावर कुछ होता तो ये यहाँ वैलिड नहीं होता, बिकॉज 169 की पावर कुछ भी होगा तो इसका मतलब मान लो 169 की पावर 83 होता, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 13 की पावर, बिकॉज 13 स्क्वायर 83 का डबल कर दोगे 166 हो जाएगा. सो इट विल, सो 169 की पावर 83 सेम एज 13 की पावर 166. So 13 can get cancelled if there is no plus or minus. You understanding? Therefore, the number must be co-prime, but denominator must be prime number. A and P must be co-prime. तो यहाँ पे मतलब ये सिर्फ कि भाई जो A है ना वो 13 का पावर ना हो, ठीक है, या 13 का मल्टीपल ना हो, कुछ भी ना हो, बस ये है important. Right. So we did this Fermat's little theorem, and we did some examples as well. Then I told you something about Wilson's theorem. Now, Wilson's theorem is used whenever there is a question based on factorial functions, right? So you understand factorial. 10 factorial is, 10 into 9 into 8 into 7 into so on and so forth. So Wilson's theorem says p minus 1 factorial plus p plus 1, is divisible by p where p is a prime number. So if divisor is, let's say 13 and the numerator is 12 factorial plus 1, therefore it would mean, that the remainder is 0. So we did little more things, that if 12 factorial is divided by 13, the remainder is minus 1. And I also taught you the difference, what is, remainder, how do you convert negative remainder into positive remainder and vice versa. So we also, generalized certain results where we said p minus 1 factorial plus p divided by p, the remainder is 0, because that itself is a Wilson's theorem. Now, further application, what we did, if there is no 1, so you do plus 1 and minus 1, so the remainder happens to be minus 1. And, any number divided by, let's say 13, and whose remainder is minus 1, the positive remainder is 12, which is p minus 1. So this is the standard result we figured out. We also moved a step forward and tried to figure out what is the remainder for p minus 2 factorial, and we have seen the answer is always 1. So this is kind of standard result. So somebody says, 11 factorial divided by 13. Now, straight away the answer is 1. You really don't have to solve it. Right. So this is what we did in the last class in terms of finding out units place and finding out the reminders, different methods of finding out reminders. Of course, people also use binomial theorem for finding out reminders, which is nothing but, expanding it and then dividing it by 10. And binomial method is also used for finding out last two digits or when the number is divided by 100. But then there are few more things, a few more types of questions that can be asked. So first we are going to first do that, and then we'll come down to just expansion of binomial theorem and also finding out last two digits. So that will be the agenda for today's session. So let's begin here. So let us say, we are talking about reminders when the number is being divided by 10 to the power n plus 1 or minus 1. Let's say, we say 10 to the power 1 minus 1. Basically what we are saying, we are talking about 9. What do we mean by 10 to the power 2 minus 1? We are basically talking about 99. What about 10 cube minus 1? Basically we are talking about 999. So fundamentally we are talking about the divisibility rules of, or
rather finding out the reminders when a number is divided by 9, 99, 999, 9999, and so on and so forth. So let's just, understand. Let's say I ask you 2, 3. Let's say I ask you 2, 3, 7, 9, 8, 1 divided by 9. What is the remainder, right? Now you remember when we were doing divisibility rules, the divisibility rule of 9 was, can anybody tell me what was the divisibility rule of 9? The sum of the digits should be divisible by 9, right? So this plus this 9, 9 plus 9, 18, 18 and 10, 28, and 2, 28 and 2, 30. So the sum of the digits happens to be 30. Now, is 30 divisible by 9? No. So it's not divisible by 9. So this number is certainly not divisible by 9, right? However, it is not divisible by 9, that's all right. But we are going to use the similar method to find out remainder. You find the sum of the digits, we get 30. Now you divide by 9. So 9 3s are 27, the remainder is 3. So when you divide this 2, 3, 7, 9, 8, 1, when you divide it by 9, 9 2s are 18, 57. Okay, 9 6s are 54. 3, 9, 9 4s are 36, 3, 9 4s are 36, 2, 9 2s are 18. The remainder is 3. You're getting it? So that's how you do it for 3. Now, if I were to ask the same question, 2, 3, 7, 9, 8, 1 divided by 99. So how would you approach this question? Once again, in this case, we were taking every single digit, we were adding it up and then finding out the sum of the digits. Now, if the sum of the digits were divisible by 9, we would simply, comment that it is divisible by 9. If it's not divisible by 9, you actually divide it by 9. Whatever is the remainder of this 30, or sum of the digits will be the remainder of the original number. In 99, you see 99 can be written as 10 square minus 1, right? So basically power 2. So basically 99 is having 2 digits. That means what we are looking is the set of 2 digits. Now, if you add this up, let's say I got 81, 79 and 23. So it makes 10, 3, 13, carry 1, 17 and 1, 18. So you end up getting the sum of the digit as, sum of the pairs of the digit as 183. Now when you divide it by 99, so if it was, so 99, that means 99 इसमें से minus करेंगे, तो ये बचेगा 4, ये कितना बचेगा 8. So 84. So my remainder is 84. You may divide this value and check that the remainder is 84. So you may want to, if you want to check, let's say 2, 3, 7, 9, 8, 1, and we are dividing it by 99. So 2 में जाएगा, 9 2s are 18, 9 2s are 18, 1 19, यही बनेगा. 17 में से 8 गया 9, 9 10 11 12 3. So we get 39. ऊपर से उतारा 9. So let's say we take a 4. 4 में चला जाएगा, हाँ. 4 9s are 36, 3, 4 9s are 36 plus 3, 39. तो हमारे पास बचा 5, 8. नहीं जाने की 0, ऊपर से उतारा 1. ठीक है. 5 में तो 5 में चला जाएगा. 9 5s are 45, 4 कैरी, 9 5s are 45 plus 4, 49. तो 11 में से 5 गए 6, और ये कितना बच गया? Did we make any mistake? Any errors? 198. सर यहाँ पे 399 minus 396 है ना? 381 हो जाएगा. 380. Nine 3s are 27, 27, 28, 29. ठीक है. तो ये बनेगा 11 में से 7 गया 4, और ये बनेगा 8. ये मेरा रिमाइंडर 84 आ गया. ठीक है. तो ये यहां से सही हो गया. Similarly, if you want to find out remainder 2, 3, 7, 9, 8, 1 divided by 999. So how many 9s are there? 3. So what is the logic? What do we do? Let's add this up.
what do you get? 237 981. So this becomes 8, this becomes 11, this becomes 12. You divide it by 999, so 219, है ना? So you get 2. If you divide this actually physically, you will also get 219. And similarly, obviously, now if I ask you what is the remainder when 237981 is divided by 9999, so what do? You end up taking these 4 values and then these 4 values. So 79810023. Okay, 10. And you divide by 9999. तो यही आना चाहिए, 4 बार है, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देख लोगे तो यही बन जाएगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज लेस देन 9919, 8004, सो दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। So now we know how to find reminders of 9 values like 9, 999, 9999 and so on and so forth. So एक तरीका तो हमारे पास यही बनता है. So let me ask you this question. Let's say I'm having a number like 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऐसे मैंने कम से कम 300 डिजिट्स लिख दिए, डिजिट है, ध्यान रखना, ठीक है। Let's say this number is divided by, what should I say, 999. Tell me the answer. Okay, I want you to send me the answer quickly on the personal direct messaging chat. No, Ayman, that's not correct answer. क्या नव्या? नो सर मतलब समझ नहीं आया या नहीं बना? अच्छा, नॉट डिविजिबल, ठीक है। डिविजिबल तो नहीं है तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा, लेकिन रिमाइंडर ही तो पूछ रहा हूं मैं, डिविजिबल की तो नहीं पूछ रहा। दिव्यम थोड़ा सा गलत है, डिजिट्स तो तुमने सही पकड़ ली, ऑर्डर गलत है, मतलब नॉट नेसेसरली रिवर्स बट दिवित, जो रिमाइंडर है वो 999 से तो कम ही आएगा ना। दिवित अभी इसको डिवाइड करो फर्दर, जो आपने निकाला है सही आ जाएगा दिवित।
जो रिमाइंडर होता है 999 से कम ही आएगा। ईमन गलत आंसर है तुम्हारा। Okay, so what is the method? See, you see, it is a 3-digit. So you take pairs of 3. How many sets of 3 you can make? You can make 100 sets. तो उनका सम कितना हो जाएगा? 123 plus 123 plus 123, 100 सेट हो जाएंगे। इनका सम कितना होगा? 12300। बिल्कुल, या तो इसको आप ऐसे करो, इसको डिवाइड करके देख लो 999, वरना याद है अपन जो हम मेथड 3 में लगाते थे या 9 में लगाते थे, अब रेदर देन डिवाइडिंग 1 2 3 0 0, इससे वापस इसका 3 का सेट बना लेते हैं अपन। सेट नहीं, फिर इनको जोड़ लेते हैं। तो 300 plus 12 कितना बन जाएगा? 300 plus 12, ये आंसर आ जाएगा। सर आपने 300 डिजिट्स लिखा था ऊपर। हाँ, 300 डिजिट्स लिखा था, बिल्कुल ठीक बात है। ओके सर। अच्छा, 99 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, हाँ दिव्या, हमने सही कर लिया। दीपक, तुम्हारा 1 ये कैसे आया मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं इसको 11301 को, इसको 11 पकड़ के 301 को 11 ऐड कर दूं तो 312 आपका भी आंसर आ रहा है। बट आई डोंट नो आपने कैसे निकाला है। ये आंसर तो सही आ रहा है 1130। बट दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, जो मैंने अभी किया है कि भाई आपको 3 के सेट बना के ऐड ही तो करना है। 3 के सेट बना के जब आप ऐड कर दोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा that needs to be divided by 999, right? But why do you have to divide it 999? अगर चूंकि वो 3 डिजिट से बड़ा है तो वापस उसको 3 का सेट बना के वापस ऐड कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली अब 312 999 से छोटा है तो वही रिमाइंडर होगा एंड वी गेट आवर आंसर। सो 312 becomes my आंसर। ठीक है, आ रही बात सबको समझ में? तो एक तरीका तो ये है अपना करने का। दूसरा ये है, मतलब तरीका नहीं, दूसरी चीज जो हम करना चाहते हैं, अभी हमने 10n-1 किया था, अब हम 10n+1 करेंगे। इसका मतलब है 10 की पावर 1+1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 10 की पावर 2+1 करेंगे तो 101 हो जाएगा। 10 की पावर 3+1 करेंगे तो 1001 हो जाएगा, so on and so forth. Now we have to find out what is that, how do we find the divisibilities of these number, right? So let us just randomly take some number 3 4 7 8 9 1 5 मान लेते हैं। And if you remember, you know the divisibility rule, do you remember the divisibility rule of 11? पहला, तीसरा, माइनस कर देते हैं। बिल्कुल, पहले इसको ऐड करेंगे, 5 और 9 14, 14 and 7 is 21, 21 plus 3 is 24, माइनस हमें क्या करना है, 1 and 8 9, 9 plus 4 is 13, तो इसमें से हमें 13 माइनस करेंगे, तो 13 माइनस करेंगे कितना आ रहा है हमारा, 11। So this is 11, so this number is divisible by 11, so therefore this complete number is also divisible by 11. So we are lucky enough to choose a number which is divisible by 11. Now let us say, you know, let's say मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, 4 एक और डाल देता हूँ 2, ठीक है। एंड नाउ नंबर इज 2 3, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये वाला। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 24 माइनस 15, तो मेरे रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 9। सो माय आंसर इज 9। अब अगर हम इसको मान लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 2 3 4 7 8 9 1 5, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, ऑल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, यानी फर्स्ट थर्ड उनको ऐड करना है, उसमें से ही दूसरा वाला माइनस करना है, ठीक है। डिफरेंस नहीं लेना है, माइनस पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस करना है, ध्यान रखना। मतलब मान लो ये बड़ा हो जाता तो रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाता, लेकिन
रिमाइंडर वही होता, ठीक है। दैट मीन्स ये इसको फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस वाला बनता आंसर। अब करके देखते हैं, 11 2 जा 22, 1 14, 11 1 जा 11, 3 37, 3 जा 33, 4 8, 4 जा 44, 4 9, 4 जा 44, 5 1, 4 जा 44, 7 5, 6 जा 66, आंसर इज 9। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अब मान लेते हैं यही नंबर होता मेरे पास 2 3 4 7 8 9 1 5 and I am looking to divide by 101. What would you do? In this case we would make sets of 2. यहाँ पे 1 1 सेट लिया था, एक इसको छोड़ के एक, ठीक है, हमने ऑल्टरनेट किया था, और जो बच गया सेट ये। तो अब मेरे पास इनका अगर हम रेड वाले का सम करें तो 47 प्लस 15, 7 5 12, कैरी 1, 5 और 1 62. This 62 needs to be, I need to subtract what? This was 89, so I have 89 and 23. So 12 11, so I have to subtract 1 1 2. So my remainder would be a negative value, which is 1 1 2 62, 0 50. So my remainder is -50. So -50 अगर किसी नंबर को हम 101 से डिवाइड करें, -50 आएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 51। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 51। ना कि डिफरेंस निकालोगे तो 50 आएगा, जो कि गलत है। तो मेरा आंसर आ रहा है 51। हम एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। 2 3 4 7 8 9 1 5 and I am looking to divide this number by 101, so I get 2. So 202, this gives me 2, this gives me 3, ऊपर से उतारा 7, यहाँ पे आ गया 3, so this is 303, 7 में से 3 गया 4, 2, ऊपर से उतारेंगे 8, 2 202, 10 में से 8 में से 2 गया 6, 4, I need to bring down 9, I need to take 4, 404, this gives me 5, this gives me 6, I need to bring 1, I get 6, 606, तो 11 में से 6 गया 5, 4, I pick up 5 and I take 4, this is 404, this gives me 1, my answer is 51, so I get 51 here, so that is the remainder. So what do? You take sets of 2, right? So you make sets of 2, then you take first, third, fifth, seventh, and then the other one you take second, fourth, sixth, उनके दो के सेट हैं, उनका डिफरेंस और वाला जो है फर्स्ट थर्ड वाले में से सेकंड फोर्थ सिक्स्थ वाला माइनस करना है, जो भी अगर नेगेटिव आ गया कोई बात नहीं, यू कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव रिमाइंडर। तो 101 का आ गया। नाउ इफ द सेम क्वेश्चन दैट इज 2, सर हाँ सर इवन नंबर पे जो सेट है उनके सम में से माइनस करना है जो ऑड नंबर पे सेट होंगे। ऑड वाले में से माइनस करना है। अगर पहले वाला ऑड है ना, राइट साइड वाला जो है ना, जो पहले पकड़ोगे ना उसमें से दूसरे वाले को घटाना है। और सर इसमें जैसे आपने पहले 47 और 15 लिया था ना, जो इवन नंबर पे है, राइट साइड से, राइट साइड से, हाँ राइट साइड से, हाँ राइट साइड से स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है। तो अगर हमें इसको 1001 से करना होता तो हम कुछ नहीं करते, वी वुड हैव टेकन सेट्स ऑफ 3। तो मान लेते हैं 2 3 4 7 8 9 1 5 and we want to divide this number by, let's say, 1 1, so they basically is 10 की पावर 3 plus 1। so हम क्या करेंगे, 3 के सेट बनाएंगे। एक सेट ये बनेगा, अगला ये सेट बन नहीं रहा तो हम इसका 0 लगा लेंगे। ये सेट बन गया, दूसरे वाला सेट ये बन गया। तो हम ऊपर वाले में से, यानी कि जो रेड वाला सेट है 9 1 5, फर्स्ट यहाँ राइट साइड से शुरू करना है, 0 2 3, तो ये बनेगा 8 3 9। इसमें से माइनस करेंगे कौन सा, जो सेकंड वाला सेट है 478, ये बनेगा 0 14 6 और 4, 460 बनना चाहिए।
ठीक है, ओके। सो माय रिमाइंडर इज 460, क्योंकि इसका जब करेंगे 460 आएगा, तो 460 को जब हम 1001 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही रहेगा। ऑफ कोर्स यू कैन डिवाइड इट एंड चेक इट, राइट। नाउ लेट अस जस्ट टेक द सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर लिखा था, ये वाला जो हमने क्वेश्चन नहीं बनाया था, ये वाला। ठीक, इसको मान लो मैंने कहा 11001 से डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा। Okay, so Navya has given me correct answer. दिव्यम 312 तो 999 से डिवाइड करने पे आया था। ओके, सो आयमन इज करेक्ट। ऐड नहीं करना है ना दिव्यम। 123 के कितने सेट बनेंगे? 123 123 123 123, ऐसे 100 सेट बनेंगे। अपने को कौन सा चाहिए? पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे ऐसे चाहिए, ये चाहिए, फिर ये छोड़ के। ठीक है, ऐसे जो बच गए ऐसे। ठीक है, तो 50-50 सेट बनेंगे। 123 इंटू 50 ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है वो
ये वाला, ये भी 123 इंटू 50 बनेगा। इसका डिफरेंस जो है दैट नीड्स टू बी डिवाइड बाय 1001, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया आंसर। हाँ जी, समझ में आया? सर एक बार और एक्सप्लेन करना सर। मतलब अपने को 3 के सेट बनाने थे। मान ले ये 123 का सेट बनाया यहाँ पे, ये एक सेट बनाया, फिर 123 का एक और, 100 एक और, ऐसे खूब सारे। कितने सेट बनेंगे ऐसे? 50-50। 100 सेट बनेंगे, ठीक है। अब पहला, अपने को पहला सेट पकड़ना है, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, ऐसे कितने सेट हो जाएंगे? दोनों 50। 50-50। हाँ, तो 50, तो इसका सम कितना होगा पहले, तीसरे, पांचवें का? 50 इंटू 123 होएगा। यस सर। और दूसरे वाले का कितना होगा? उसका भी 50 इंटू 123 होगा। यस सर। अब हमें क्या निकालना था, इसका क्या मेथड था? उनका डिफरेंस लेना है अब अपने को। यस सर। डिफरेंस कितना आएगा? 0। 0। इसका क्या मतलब है? ठीक है। डिविजिबल है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये इसके कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। इसके बाद एक बार मैं थोड़ा बाइनोमियल बता देता हूं आपको, बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको हम पास्कल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मान लो a प्लस बी होल की पावर 1 है, तो ये बनेगा a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये क्या बनता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे ही a प्लस बी होल की पावर 4, इसका कोफिशिएंट नहीं पता, कोफिशिएंट निकालना है हम, लेकिन ये a की पावर 4 बनेगा। फिर यहां पे बनेगा a की पावर 3, ठीक है, b की पावर 1 प्लस, समझ में आ रहा है? टोटल सम 4 बनना चाहिए, तो 3a ये 1 है, इसको हम बढ़ाएंगे तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, इसको एक कम करते जाएंगे 1, तो ये b क्यूब बनेगा और ये b की पावर 4 बनेगा। इन सब में यही काम हो रहा है, इन सब में यही काम हो रहा है। मान लेते हैं मेरे पास a प्लस बी होल की पावर 5 है, तो मैं क्या करूंगा, a की पावर 5, फिर a की पावर, इसको एक कम करूंगा, यहाँ बेसिकली b की पावर 0 समझ लो, ये b की पावर 1 है, फिर a की पावर 3, b की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 3, a की पावर 1, b की पावर 4, a की पावर 0, b की पावर 5, ये सम। तो हमें वैल्यूज तो पता है, अगर हमें इसका कोफिशिएंट्स पता लग जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 1 है, इन दोनों को 1 कर दिया, ठीक, ये बना लो। इन दोनों का सम कितना होगा? 2, इसके आगे 1 1 कर दो। इन दोनों का सम कितना होगा? 3, इन दोनों का सम कितना होगा? 3, इधर 1 1 लगा दो। फिर इन दोनों का सम कितना होगा? 4, इन दोनों का सम कितना होगा? 6, इन दोनों का सम कितना होगा? 4, यहाँ लगा दो। फिर इन दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस ये 5 बनेगा, इन दोनों का सम बनेगा 10, इन दोनों का सम बनेगा 10, इन दोनों का सम बनेगा 6, 1 1 जोड़ दो, 5 सॉरी, ठीक है। फिर इनको इस तरीके से जोड़ते रहो। अब ये जो पहला वाला है, पता है किसका? ये a प्लस बी की पावर 0 है, तो 1 ही आएगा, तो पहले वाले का ये पावर 0 है, ये पावर 0 का आंसर है। ये वाला जो पावर 1 का आंसर है, पहला कोफिशिएंट 1, दूसरा कोफिशिएंट 1। ये वाला जो है पावर 2 का आंसर है, पहला कोफिशिएंट 1, दूसरा कोफिशिएंट 2, तीसरा कोफिशिएंट 1। अगले वाला ये किसका पावर है? ये 3 की पावर है, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 1, ये देखो 1 3 3 1। ये किसका पावर है? 4th डिग्री का पावर है, 1 4 6 4, पहला 1 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 1 बनेगा। फिर ये किसका है? ये बनेगा 1, ये बनेगा 5, ये बनेगा 10, ये बनेगा 10, ये बनेगा 5, ये बनेगा 1, ठीक। तो एक तरीका ये है, किसी भी चीज का ऐसे अपन करते जाएंगे तो हम किसी भी चीज का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो ये एक जनरल मेथड होता है, जिनको बाइनोमियल नहीं आता है वो मतलब उनके लिए ये समझ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो जनरल फॉर्मूला बाइनोमियल का होता है वो a प्लस बी होल की पावर n। अब ये क्या है, हमने 1 2 3 4 लिखा है, ये जनरलाइज कर दिया मैंने n को, तो ये बनता है n c0। ये चीज किस चीज के लिए? कोफिशिएंट निकालने के लिए।
a की पावर n-0, n यानी हाईएस्ट पावर, और b की पावर 0। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो कि b की पावर 0 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको a की पावर 0 लिख सकते हो। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो b की पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ a की पावर, क्योंकि देखो 0 1 2 3 4 बनेगा और ये 4 3 2 1 0 बनेगा, ऐसे मूव करता है। तो nc0 a to the power of n-0 b to the power of 0 प्लस nc1 a to the power of n-1 b to the power of 1। इनका सम देखो n बनना चाहिए, जो पावर है वो सम बनना चाहिए, उससे चेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे 5 + 0 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5, तो पावर सेम होनी चाहिए। अगला बनेगा मेरा nc2 a to the power of n-2 b to the power of 2, ऐसे चलता जाएगा। और ये बनेगा मेरा ncr, एक जनरल टर्म बोलते हैं, a की पावर n-r a to the power of r, फिर ऐसे चलता जाएगा और आखिरी में कहाँ चला जाएगा, nc0 a to the power of n-n 8, सॉरी b है ये, और ये है a की पावर n-n b की पावर n, ये एक्सपेंशन है। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं a + b होल की पावर 4 कर देता हूं, तो ये मेरा बनेगा 4c0 a to the power of 4 b to the power of 0 प्लस 4c1 a to the power of n-1 यानी 3 b to the power of 1। ठीक, फिर बनेगा 4c2 a to the power of 2 b to the power of 2, फिर बनेगा 4c3 a to the power of 1 b to the power of 3, फिर बनेगा 4c4 a to the power of 0 b to the power of 4। अब पावर 4 हमने यहाँ पे किया हुआ है, ध्यान से देखना, हमको कोफिशिएंट पता है, लेकिन यहाँ पे अब हमें निकालना पड़ेगा। तो nc0 का क्या मतलब होता है, nc0 यानी ncr अगर हम कर लें तो ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये होता है। तो अगर मैं 4c0 की बात करूं तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 0 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। तो 4 - 0 यानी 4 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल है ना। अब 4 फैक्टोरियल ये तो बन जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो पहला वाला जो कोफिशिएंट है nc0, तो जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में बनाया, इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। अब मुझे चाहिए 4c2, तो अगर मैं 4c2 की वैल्यू बताऊं तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल बाय 4 - 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये वो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल होता है, ये कटेगा, आंसर आएगा 6। यानी इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, इसकी जगह मुझे लिखना है 6, और जो कि हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, हाँ 4c2 की जगह 6, ये सेकंड टर्म है, 4c1 नहीं है, 4c2 लिखा है मैंने, 4c1 तो किया ही नहीं। अभी यहाँ पे हम 4c1 कर लेते हैं। 4c1 का मतलब है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 फैक्टोरियल, 4 × 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, मेरा आंसर आएगा 4, यानी कि ये वाली वैल्यू बनेगी 4, यहाँ से 4, ये 6। उसी तरीके से इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये बन जाएगी 4, 4c1 और ये बन जाएगी 1। ठीक है, ये वैसे भी हम कर सकते हैं, 4 ncr is same as ncn-r, so 4c1 is same as 4c3 and 4c1 is 4, so we can take this 146। इस टाइप से हम इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसी तरीके से हम किसी का भी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। अगर एनसीआर से निकालना है तो ये तरीका है, ऊपर वाला जो मैंने तरीका बताया वो पास्कल्स ट्रायंगल का तरीका है। बोलिए, यहां तक बात समझ में आती है? हाँ जी, मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? ओके, then let's try to find out some values whose last 2 digits are required by us. Let's say I am interested in finding out last 2 digits. That means basically we are only interested in these last 2 digits. इसकी पावर हमें चाहिए, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है।
Now for the time being I am starting with value which is ending with, let's say, 1. ठीक है, तो so what do you do is units place तो 1 आएगा ही आएगा. You multiply 9 by 6. 9 6 का कितना होता है 54. लास्ट 2 डिजिट ये बनेगा, ये मेरा आंसर है. समझ में आ रहा है? So in case we have in this case all you have to do is this. कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान लो 4 5 8 9 3 1 होल की पावर 5 8 4. So 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है. Preceding digit will be multiplied by this 2. तो 3 2 जा 6 इसका आंसर. ठीक है. So we are talking about numbers ending with 1. ठीक है, numbers ending with 1. Then if you take numbers ending, अभी हम क्या करते हैं, हम odd numbers की बात करते हैं. 1 3 5 एक बार बाद में करेंगे, 7 and 9 मान लेते हैं. ठीक है. So let us say my question is 4 3 7 8 7 whole की पावर 5 4 3 2 1. मुझे इसका लास्ट 2 डिजिट चाहिए. लास्ट 2 डिजिट का मतलब ये भी होता है कि डिवाइड बाय 100 करके रिमाइंडर चाहिए. बेसिकली वन एंड द सेम थिंग. सो माय क्वेश्चन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 87 की पावर 5 4 3 2 1, राइट. सो इफ समहाउ आई एम एबल टू मेक 1 हियर, माय क्वेश्चन विल बिकम इजी. सो आई नो the cyclicity of units place is 4. So if I somehow raise it 87 की power 4, it will give me 1, because this will become 4 1s are 4 14 4 3s are 12 23 4 5s are 20 32 4 8s are 32 0 and remainder is 87 की power 1. यही बनेगा. यस सर. ठीक है. अब इसको हम कैसे सॉल्व करें. 87 की पावर 4 याद है आपको, स्क्वायरिंग टेक्निक्स मैंने बताई थी. इसका स्क्वायर करें, कितना करीब है 13. 13 का स्क्वायर 169. तो 87 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट कितना बनेगा 69. ठीक है. तो अब 87 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 69 है. तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं तो 87 की पावर 4 आ जाएगा. 69 का मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड वैल्यू 50 है, गरीब कितना है, अमीर कितना है 19. 19 का स्क्वायर बनेगा 361. लास्ट 2 डिजिट कितनी आएगी इसकी 61. यहां तक समझ में आ रहा है. ये हमने 61 बना लिया 87 की पावर 4 करके, लास्ट 2 डिजिट 61. अब 61 के बाद 13580 है इंटू 87 है. इसका आंसर हमें पता है, यहाँ तो 1 आएगा. 6 इंटू 0 करना है. 6 इंटू 0 01. इसका वैल्यू 01 मल्टीप्लाइड बाई 87. इसका मतलब इसका आंसर आएगा 87. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस नंबर को 100 से डिवाइड करोगे, आंसर इज 87. दैट इज हाउ यू कैन डू इट. मतलब हमें पावर 87 की पावर 4 कैसे सॉल्व किया सर? ये 87 की पावर 4 कैसे सॉल्व किया है सर? लास्ट 2 डिजिट्स निकाली ना सर आपने ये स्क्वायर करके. आपने ओरिएंटेशन क्लास लगाई थी, फर्स्ट क्लास कभी मैंने वैदिक मैथ्स पढ़ाया हो आपको? नो सर. अच्छा, वैदिक मैथ्स वाली क्लास नहीं लगा, अभी करी तो थी कुछ दिन पहले, कुछ दिन 5-7 दिन पहले. नहीं लगाई? नहीं. नो सर. ओके. ये ना एक वैदिक मैथ्स की क्लास होती है फाउंडेशन की, उसमें मैं इसको शॉर्टकट बताता हूँ, ये करवाता हूँ, उससे डायरेक्ट हो जाता है आंसर. मतलब पावर 4 की लास्ट 2 डिजिट निकालना, किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग टेक्निक होती है. एक जैसे मान लो मुझे 107 का स्क्वायर चाहिए ना, तो मेरे आंसर के 2 पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा क्लास में. तो हमें स्टैंडर्ड 100 मानते हैं, तो 100 का स्क्वायर 7 फालतू है, 7 का स्क्वायर 49, यानी इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 49 है. फर्दर इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है. अब ये 49 है ना, तो हम स्टैंडर्ड 50 मानते हैं. 50 से करीब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 01 होता है. यानी कि अगर हम 107 की पावर 4 करेंगे ना, तो लास्ट 2 डिजिट 01 आएगा, ये कंफर्म है. वो हमने शॉर्टकट यूज किया है. एक बार के लिए आप इसमें समझ लो पावर 4 करना है, ठीक है. वो शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, 2-4 दिनों में पूछता हूँ रजनीश से, और किसकी क्लास रह रही है, उस क्लास में मैं आपको ये करवा दूंगा. ठीक है. तो मतलब पावर 4 करने से हमारा जल्दी से काम बन जाएगा. उसी तरीके से मान लेते हैं कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 3 7 8 4 9 है, मान लेते हैं 4 7 8 2 मान लेते हैं, डिवाइड बाय 100 या फिर लास्ट 2 वन एंड द सेम थिंग.
इसको भी मैं 4 से ही डिवाइड करूंगा, इसको हम भूल जाएंगे, मेरा आंसर बनेगा 49, 49 की पावर 4 करूंगा। क्यों करूंगा? मुझे आखिरी में 1 चाहिए। इस केस में अपन 2 भी कर सकते हैं, बिकॉज 49 का स्क्वायर हमें पता है 9 9 जा 81 होता है, तो 1 आ जाएगा, तो 2 भी कर सकते हैं, तो 2 ही कर लेते हैं, चूंकि हमें पता ही है तो हम 2 कर ले। या तो देखो अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो 4 से करोगे तो होएगा ही होएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 और ऊपर बन जाएगा 2391। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएंगे 01, इसका स्क्वायर करोगे ना लास्ट रूट आएगा 01, तो 01 आ गया। 01 की पावर 2391, 01 में 1 तो आएगा, 0 into 1 0 बनेगा, तो इसका आंसर 01 आएगा। तो अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 01 आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। ठीक है, okay, so if there is any odd number you can raise it to the power of 4 and you can make 1 in the units place and then you can use the shortcut. Now only problem is with 5. Now let us say I have a number like 3 4 7 8, 3 5 whole की power 5 7 8 3 2. I'm asking you the last 2 digits. Let me tell you one thing interesting. If the number is ending with 5, the last 2 digit can only be either 25 or 75. It cannot be anything else. Right, so if the last digit is 5, units place is anyway 5, that is a given, उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन अगर हमें लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो या तो मेरा आंसर 25 आएगा या तो मेरा आंसर 75 आएगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में 75 आता है, when the preceding digit is odd and this power is also odd, only then you will get 75, otherwise you will get answer 25। इसका आंसर ये odd है ये even है, इसका आंसर 25 है, करके देख लो, काम खत्म। 75 कब होगा? जब प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है और ये वाला जो यूनिट्स प्लेस यानी जो पावर है वो भी ऑड है, उसी केस में मेरा आंसर 75 आएगा, वरना आपका आंसर 25 आएगा। दैट्स ऑल, वो आप चेक करके देख लो, ये आपका रिजल्ट है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यस सर। इसके बाद बच गया इफ द नंबर इज इवन, इफ द नंबर इज इवन, 2 इज इवन, हाँ वो चलेगा बेटा, इवन दोनों ऑड होने चाहिए ना, ये ऑड नहीं है ना, तो इसका आंसर 75 आएगा। अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे, इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर 25 है, बिकॉज दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड, सो द आंसर इज 25। इसका आंसर ये है। ये तो मैं बता रहा हूं कि अगर ये ऑड होता, मान लेते हैं यहाँ पे 1 होता, मान लेते हैं यहाँ 1 होता, तो ये और ये ऑड होता तो आंसर 75 आ जाता। ठीक है, मान लेते हैं एक और, मान लेते हैं 2 3 8 7 5 होल की पावर 125, इसका आंसर आएगा 75, क्योंकि यहाँ ऑड है। यहाँ पे 3 होता तो भी 75, यहाँ पे 5 होता तो भी 75, ये भी ऑड ये भी ऑड तभी 75। इसको मान लेते हैं 2 3 8 6 5 कर देते और यहाँ 1 2 5 कर देते, तो ये तो ऑड है ही लेकिन ये इवन है, तो इसका आंसर 25। ठीक है, यस सर। इसके बाद प्रॉब्लम आती है अगर ओवरऑल नंबर इवन है तो क्या करेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन है 8 3 7 8 4 2 होल की पावर 8 3 7 9। नाउ वी आर इन ट्रबल, वी आर इन ट्रबल बिकॉज, हाँ सर उसमें अगर दोनों इवन हो तो भी 25 ही आएगा, कुछ भी हो 25 आएगा, एक ही केस में 25 नहीं आएगा, जब दोनों ऑड हो, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड हो और पावर ऑड हो, तभी 75 आएगा, नहीं तो आंसर 25 आएगा, कुछ ही हो। ठीक है सर। Now, so basically my question reduces to this. So I have 42 can be written as 2 into 21. Why do I write 2 into 21? Because any even number basically is even because there are 2's available. So if you remove 2's, so now the question becomes easier because this is an odd number. So 2 की power 8379 into 21 की power 8379. Now obviously we know the answer to this question. This is easy because units place 1 आ गया luckily और preceding digit 2 into 9, 9 2 जा 18, 18 यानी 81, यानी इस पोर्शन का आंसर 81 आ गया, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। द प्रॉब्लम इज टू फिगर आउट दिस, इसका आंसर
अगर इसका लास्ट 2 डिजिट मिल जाए तो इसका लास्ट 2 डिजिट इंटू 81 करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा. How do you find out last 2 digits? Now here I am just going to give you a quick pattern. See, if you have 2 की power 1, you have 2, 2 की power 2, you have 4, मतलब 0 2 0 4. ऐसे करते 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 अगर मैं 2 की पावर 9 चला जाता हूं और 2 की पावर 10 चला जाता हूं तो ये 1024 बनता है. और ये वाला बनता है, उसके पहले वाले कितना बनेगा, 512 ऐसे. ठीक है. फिर मैं 2 की पावर 11 करता हूं. ठीक है. तो इसको हम करेंगे तो ये बनेगा 2048, 2 की पावर 12. ऐसे करते 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 जब 2 की पावर 20 करूंगा ना तो लास्ट में 76 आएगा. फिर मैं 2 की पावर 21 ऐसे ऐसे करते करते 2 की पावर 30 करूंगा ना तो 24 आएगा. फिर 2 की पावर 40 करूंगा ना तो 76 आएगा. 2 की पावर 50 करूंगा ना तो 24 आएगा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर 10 इंटू अगर कोई ऑड नंबर है मेरे पास, यानी कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 30 यानी 3, 2 की पावर 50, 2 की पावर 70, 2 की पावर 90, कुछ भी है, इसका आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास, 24. और अगर मेरे पास 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर है, इवन का मतलब है 2 की पावर 20, 2 की पावर 40, 2 की पावर 60, 2 की पावर 80, कुछ भी है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 76. ये एक पैटर्न है, ये ऑब्जर्व करोगे और मैं चाहता हूं याद रखना है. ये हमने कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको याद होना चाहिए. अब हमें लेकिन आंसर किसका चाहिए, हमें आंसर चाहिए लास्ट 2 डिजिट ऑफ 8379. हमें चाहिए 2 की पावर 8379. तो बेसिकली मैं 2 की पावर 10 इंटू करना चाहूंगा तो 2 की पावर 10 करूंगा, 837 बचेगा इंटू 2 की पावर 9. यहां तक समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है यहां 0 लगा के इसको अलग कर लो तो प्रीसीडिंग डिजिट ये क्या हो गया, ऑड नंबर. ये क्या हो गया, ऑड नंबर. तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी बेसिकली प्रीसीडिंग 24 है, ऑड हो गया ना तो 24. अब इसका चाहिए 2 की पावर 9. अब ये हमें करना पड़ेगा. 2 की पावर 9 का आखिरी 2 में क्या आता है, 512 यानी 12, यानी कि 24 इंटू 12 कितना बनेगा, 240 प्लस 48 यानी 288. इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, 88. ठीक है. इसका प्रोडक्ट किया 88, ऊपर हमने किया था 81, तो मेरा एक्चुअल आंसर क्या बनेगा, 88 इंटू 81. ये मुझे सॉल्व करना है, शॉर्टकट राइट क्रॉस लेफ्ट, 8 1 जा 8 क्रॉस करेंगे, 8 8 जा 64 प्लस 8 8 4 12. हमें तो यही चाहिए ना बेसिकली, तो बस हो गया मेरा आंसर 28. पूरा करने की जरूरत ही नहीं. बस ये याद करना है आपने. If you can understand this, we can wrap up this class today early. That is last 2 days. सर यहाँ पे अगर 21 की जगह कुछ और नंबर आ जाता तो, मान लेते हैं क्या जाता, जैसे कि कुछ भी बताओ वैसे ही अपने मन से. 26 आ जाता तो, 26 आता, फिर 1 2 और बाहर निकालते हैं, 4 बाहर निकालते. अल्टीमेटली अंदर अपने को ऑड नंबर चाहिए क्योंकि ऑड का मेथड अपने को पता है. तो बाहर क्या आ जाता, 4. 4 का मतलब 2 स्क्वायर. तो मेरा आंसर, मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो जाती, I would have taken 2 square common and inside I would be remaining 13, but there is a power of 8739. So I would solve 13 की power 8739 and I would want to solve 2 की power, इसको 2 multiply कर देंगे basically. 9 2 जा 18, क्या बनेगा 617, ये बनेगा 7 14 17. So I would solve this independently and I would solve this independently. Now to solve this independently, I'll have to take power of 4 because I want to take 1 here. यहाँ तो 121 था तो लकीली हम फटाफट हो गया, लेकिन इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर 4 करना पड़ेगा. 39 की पावर 4 यूनिट्स प्लेस में आप देखोगे 1 बनेगा, 13 क्योंकि 30 की पावर 4, 13 का जो स्क्वायर बनता है वो 169 होता है, तो 69 आएगा. इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 361 बनेगा, यानी 61 आएगा. तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 61 की पावर 8739, ये बनेगा 1, 6 इंटू 9 54, ये बन जाएगा 41. तो इस पोर्शन का जो आंसर आ गया 41 आ गया. अब हमें ये सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2 की पावर 10 इंटू 1 747 इंटू 2 की पावर 8, यही करना पड़ेगा. ये क्या है, पावर ऑड है, 2 की पावर 10 इंटू ऑड, तो ऑड का मतलब इसका आंसर आएगा 24 और 2 की पावर 8. 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 56. तो ये 24 इंटू 56 इंटू 41, इसका जो भी लास्ट 2 डिजिट आंसर होगा वो इसका
लास्ट 2 डिजिट का आंसर होगा। ये इसका मेथड है। तो अगर 26 बन जाता, ठीक है, और मतलब अपने को 2s बाहर निकालने पड़ेंगे ताकि हम अंदर वाले एक वैल्यू को ऑड बना सकें, बिकॉज any even number is even because of 2s, right? If you remove all the possible 2s there, then it will become an odd number unless it is purely made up of 2. मान लेते हैं आपने बोला सर वो तो 2 की पावर 834 आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो सिर्फ 2 वाला पोर्शन सॉल्व करना रह जाएगा। मान लो 64 है तो 2 की पावर 6 हो गया ना, 2 की पावर 6 बस, ठीक है, उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं। अदर देन दैट कोई भी इवन नंबर होगा उसमें 2s अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, ऑड नंबर बन जाएगा, एंड देन वी कैन हैंडल दैट क्वेश्चन फ्रॉम देयर। ठीक है, यस सर। नव्या समझ में आया कुछ? यस सर। सर एक ये बता दो कि 13 की पावर 8739 को फिर हमने 61 की पावर 8739 कैसे लिखा? इसको कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, ये देखो, इसको मैंने किया 13 की, सॉरी ये गलत लिखा है बेटा मैंने, मिस्टेक, 4 पावर निकाल दिया ना, तो यहाँ ये लिखना चाहिए था, मैंने इसकी पावर 4 निकाल दिया था ना, मतलब 61 बनाने के लिए मेरे को इसको 4 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, मैंने गलती कर दी, 4 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, अंदर बचेगा 2, 4 1 जा 4, 33, 4 8 जा 32, 1 19, 4 4 जा 16, 13 की पावर 3, ये बचेगा, मैंने गलती कर दी है जल्दी बताने के चक्कर में। अब ये बनेगा 61 की पावर 2184 इंटू 13 क्यूब, 13 क्यूब के लिए करने के लिए क्या करोगे, 13 का स्क्वायर यानी कि 69 इंटू 13 ये बचेगा, और इसका सॉल्व करने का 1, और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 41, तो ये 41 ही बनेगा, 41 इंटू 69 इंटू 13, ये जो बनेगा लास्ट 2 डिजिट बनेगा इसका, और इसका जो हमने वो निकाला था वो, ठीक है। ओके सर। ये पावर 4 लिया ना, जब पावर 4 लिया तो पावर 4 लेके जो बचेगा उसको सॉल्व करना है ना, मैं तो इसी को कर दिया सॉल्व, ठीक है। सर आयमन समझ में आया? यस सर। सचिन? यस सर। ठीक है, तो बस ये पेंडिंग पड़ा था नंबर सिस्टम्स का, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस कंपोनेंट ऑफ नंबर सिस्टम। सर हाँ सर वो एक बार आपने जो लास्ट में करवाया था ना, जो लास्ट स्टेप था सर, क्या करवा था लास्ट में? सर वो एक बार नीचे करना पेज को, ये सर ये 2 रेज़ टू पावर 10 into 837, यहाँ से सर एक बार समझाना फिर से, ये लास्ट स्टेप समझ नहीं आया सर। इसको अपन 2 की पावर 10 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, ये रिमाइंडर आएगा, मतलब 8379 को अपन लिख सकते हैं 10 इंटू, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 837 प्लस 9 लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। तो चूंकि प्लस 9 है तो हम इंटू अलग से करेंगे 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 इंटू ऑड नंबर, इसका आंसर आएगा 24। कैसे, ये देखो पैटर्न देखो, 2 की पावर 10 इंटू ऑड, 2 की पावर 10 30 कुछ भी होता, आंसर क्या आएगा 24। यस सर। ठीक है, और 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512, तो इसका आंसर आएगा 12। सर इसके बाद आएगा 24 into 12, ये मतलब क्या किया इसके बाद सर बताना। मल्टीप्लाई किया, 24 इंटू 12 कर ले मल्टीप्लाई। अच्छा कैसे किया है, शॉर्टकट यूज किया 10 + 2, सर जैसे मल्टीप्लाई किया उसके बाद सर 28 लिखा है नीचे आपने, ये 28 का ये क्या है 88 आया ना, 88 समझ में आया? हाँ सर ये तो आपने मल्टीप्लाई की सिंपल। तो ये 88 किसका किसका है, सिर्फ इसका है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था अपना, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, यहाँ से देखो, ये देखो ये था ना, ये वाला भी तो करना है ना, ये 21 वाला सेकंड पोर्शन, ये वाला भी तो सॉल्व किया था, ये सॉल्व करके 81 निकाला था ना, वो ये 81, वो 81 यहाँ पे,
दिव्यम, ये बहुत ही रेयर क्वेश्चंस हैं, ऐसी कोई बहुत ज्यादा शीट नहीं मिलेंगी जहां पे आप ये सब कुछ कर पाओगे, बट फिर भी मैं आपको एक शीट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें भी, इसमें भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ओके सर। या प्लस मैं और एक दूसरी मतलब कैट की बुक में से भेज दूंगा आपको एक आधी क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत रेयर आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, कम पूछे जाते हैं और कम पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैंने, लेकिन फिर भी आते हैं, आ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जब टफ क्वेश्चन बनना होता है ना तो वो नंबर सिस्टम डाल देते हैं, तो क्योंकि तुम आईपीएम के बच्चे हो इसलिए मैंने करा दिया, ये मैं दे दूंगा, बाकी मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन बुक में। और ये वाला मेथड बाय द वे है नहीं, ऐसे जनरली नहीं मिलेगा कहीं पे, मतलब ये अपना शॉर्टकट है ये। कल कौन से टॉपिक? क्या चीज? कल के टॉपिक आपकी आवाज कट रही है, आप क्या कह रहे हो?